Good morning, student. Today we are going to start the new topic of our 10th standard. That is topic number 3, chemical reaction and the equation. Okay. So what is the name of our topic? Chemical reaction and the equation. So before this class 10th standard, you have already studied about the chemical reaction, or you have idea about the chemical reactions, right? So which are the chemical reaction, what are the types of chemical reaction? I think in 9th standard, in 8th standard, you learn about the somewhat about the chemical reaction and the chemical equations. Okay, so in this chapter we are going to deals with the chemical reactions, then balancing a chemical equation, then rules, how to write the chemical reactions, and then types of chemical reactions. So all that things we have to learn in this chapter. So before we are going to start the concept, so we go through the can you recall. Some questions are given in your textbook under the heading of can you recall. So let me focus on the first question, that is what are the types of molecule of the element and the compound. So what is the question? What are the types of molecule of a element and the compound? So first of all, what do you mean by molecules of the element or and compound, or molecules of the elements and the compound, मतलब क्या होता है? तो actually when atoms of the different element, what when atoms of the different element, right, atoms of different element are combined together and form the what molecules of the compound, right? So when the atoms of the different element के atoms क्या होते हैं बेटा? They combine together and form a what molecules of the compound. क्या form करते हैं बेटा? Molecules of the compound. And when the molecules of the elements are formed, when the atoms of the same element, right, are combined and form the molecules of the element. Generally three types of the molecules of the elements and compounds are there, that is the monoatomic, right, then diatomic and the polyatomic, right, and the polyatomic. You know how the compounds are formed in the previous standard. You have well known about the how the compounds are formed. Let's take the example like hydrogen. Okay, so hydrogen, two hydrogen atoms are combined and form the hydrogen molecule. This is the molecule of the hydrogen. Two hydrogens are comes together and they bonded together and form the H2. Then chlorine, it is also diatomic molecule. Also you will see that some compounds formed by the different element or the different atoms of the element. So they are like, let's take the example of the methane, right? So this methane is formed by the bond formation between the hydrogen and the carbon. Okay, so here this is the polyatomic molecules are there. This is the polyatomic molecules. So monoatomic, diatomic and the polyatomic, right? So these are the different types of the molecules of the elements and the compound. Okay, then next question is the what is meant by valency, right? So valency means what? Okay, so before you that you have the idea of the valency. Valency is a combining capacity of the element. Okay, valency किसे बोलेंगे हम बेटा? Combining capacity of the element. That is the definition of the valency. But how we have to define, or how the valency of the different elements are determined? Okay, so when you will see that when the number of electron, that is gain or loss or accept or share by the particular atoms of the element so as to attain the stable electronic configuration. So that number of electron is called as the valency. किसे बोलेंगे valency? कि एक आधी element
उसके आउटर मोस्ट शेल में से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है बेटा गेन करता है, या अदरवाइज जितने इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है शेयर करता है, दैट इलेक्ट्रॉन नंबर इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। हमने वैलेंसी निकाली है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, ओके, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। ओके, सो सोडियम को स्टेबल होना है तो कैसे स्टेबल होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल से वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस्ट करेगा, बराबर है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों लॉस कर रहा है, सो एज टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, दैट इज द नियॉन, है ना। उसके नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। ओके, सो इसलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। सो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। अंडरस्टैंड, बराबर कि नहीं। तो इस तरह से मतलब वैलेंसी किसे कहेंगे या वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन 17 नंबर है 287, बराबर है। अब आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन को पॉसिबिलिटी है 7 डोनेट कर सकता है या 1 ले सकता है, तो विच पॉसिबिलिटी इज अफोर्डेबल फॉर द क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, गेन करना है एक्सेप्ट करना। तो दैट्स वाई क्लोरीन कैन गेन द 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गेन करता है। इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज आल्सो 1। क्यों 1 है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। कार्बन का देखते हैं तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। मतलब वैलेंसी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस और शेयर बाय द what particular atoms of the element so as to attain the stable electronic configuration of the nearest noble gas, that electron number is called as the valency. Okay, then next question is the what is the requirement for writing the molecular formula of the different compound, बराबर है। you know that how the compounds are formed, compound कैसे फॉर्म होते हैं, एक या है ना एक से ज़्यादा एलिमेंट are combined together, they are combined together in a fixed proportion, right? So they form the compound. compound और mixture already आपने 9th में पढ़ा है कि compound में और mixture में क्या difference है। तो actually बेटा compound में भी एक या एक से है ना एक से ज़्यादा elements, राइट, वो क्या होते हैं बेटा, कंबाइन होते हैं, लेकिन उनका प्रपोर्शन कैसे रहता है, फिक्स रहता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जब प्रपोर्शन फिक्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। मिक्सचर का कैसे, मिक्सचर में भी एक या दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा है ना, दो मतलब मोर देन 1 एलिमेंट्स और मोर देन 1 व्हाट थिंग्स आर कंबाइंड बट देर इज़ नो फिक्स प्रपोर्शन, सो दैट टाइप ऑफ दैट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। बेसिकली मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस क्या है बेटा कि कंपाउंड में प्रोपोर्शन जो है, जो एलिमेंट या उसमें जिस कंबाइन होती है उनका प्रोपोर्शन कैसे रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन मिक्सचर में जो है बेटा वो प्रोपोर्शन क्या रहता है, फिक्स रहता नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपाउंड H2O है ना, कंपाउंड वाटर H2O, ओके, ये हो गया H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। और यही समझो H2O2, ये हो गया बेटा, राइट, ये H2O2, मतलब ये कंपाउंड डिफरेंट है। यहाँ पे कौन सा रेशियो है, ये रेशियो, राइट, मतलब इसका नाम दूसरा हो गया, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दिस इज द वाटर। मीन्स 1 oxygen atom increase in this compound, so that's why its names and properties become change. Means what it mean, it mean that compounds has a fixed what, कंपाउंड हैज़ अ फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड में कैसे रहता है, फिक्स प्रोपोर्शन। लेकिन मिक्सचर में जैसे नींबू पानी एक मिक्सचर है, राइट, देन चिवड़ा एक मिक्सचर है, उसमें एक हाथ कंटेंट कम ज़्यादा हो गया, उसका प्रोपोर्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, तो भी उसको हम मिक्सचर ही बोलेंगे, बराबर है। अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द मिक्सचर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th standard. Now, what is our question? What is the requirement for writing the molecular formula of the different compound? So, for writing the molecular formula of the different compound, there is a requirement of the valency of a radical. बराबर है, valency of a radical। जो radical form होते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन
जनरली है ना रेडिकल से फॉर्म होता है जनरली, बराबर है कि नहीं। तो उस रेडिकल की वैलेंसी पता होना बहुत जरूरी है, किस लिए बेटा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। देन अनदर क्वेश्चन इज दैट हाउ आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आर रिटन। ओके, ये भी क्वेश्चन 9 से रिलेटेड है, मतलब कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं, राइट। तो ये भी कुछ स्टेप्स आपने पढ़ी है। ओके, तो भी एक बार बता देता हूँ कि how the compounds molecular formula of the compounds will be formed. So for that let's take the example of the sodium sulfate. हम sodium sulfate का एक example लेंगे, how to form the molecular formula of the compound sodium sulfate. Its general formula is Na2SO4. ओके, तो ये Na2SO4 कैसे फॉर्म हुआ ये देखेंगे। सबसे पहली जो स्टेप है बेटा स्टेप 1 है ना, उसके स्टेप्स आपने पढ़ी है 9th में। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि राइट द, ओके, सो व्हाट वी शुड डू इन द स्टेप 1, सबसे पहले तो ये जो सोडियम सल्फेट है, बराबर है, उसके हम रेडिकल लिखेंगे, मतलब उसके आयंस लिखेंगे, है ना। एक सबसे पहले तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेसिक आयंस और क्या बोलते हैं एसिडिक आयंस, ये दोनों हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक सोडियम और दूसरा क्या है बेटा तुम्हारा सल्फेट, राइट, सोडियम और सल्फेट, ये दो आयंस लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो स्टेप्स 2 आएंगे उसमें इनकी क्या लिखेंगे बेटा, वैलेंसी लिखेंगे, है ना। सेकंड स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, इसकी जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी है बेटा 1 है और इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, ये वैलेंसी लिखेंगे, बराबर है। चलो तीनों स्टेप मैं इसी में करके देता हूँ। ओके, तीसरी स्टेप क्या है कि ऐसे क्रॉस वैलेंसी के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। फिर फाइनली इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड यू विल दिस जैसे Na into 2, so Na2SO4 into 1 SO4, so this is the molecular formula of the what sodium sulfate. तो बेटा ये these steps you have to follow for making the molecular formula of the different compounds. तो ये जो कंपाउंड हमें चाहिए था सोडियम सल्फेट, जिसका मोलिकुलर फार्मूला हमें बनाया Na2SO4, दैट इज सोडियम सल्फेट। तो you have to go through these stages, right, for making the molecular formula of the different compound. So all that things are given in the 9th standard. I hope you have learned in the 9th standard. फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूले क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप जितने भी कंपाउंड्स हैं, मतलब ये एग्जाम्पल हमें क्या बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर्ड द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिकल, उनकी वैलेंसी की क्या है बेटा जरूरत है। ओके, सो दिस इज अबाउट द, कैन यू रिकॉल। ओके, नाउ सो we are going to start the chemical reaction. So before we are going to learn the chemical reaction in details, first of all we have to focus on the changes. Okay, तो सबसे पहले हमें changes के बारे में सोचना है. So changes, okay, actually in our day-to-day life, right, various activities, various processes, various metabolic activities, various processes are takes place in a routine world, है ना. बहुत सारे बदल है ना, हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बदल जनरली होते रहती है, बराबर है. कुछ जो बदल है, जो कुछ चेंजेस जो है वो कैसे है बेटा, वो परमानेंटली होते हैं. कुछ कैसे होते हैं कि वो टेम्पररी होते हैं, है ना. आपको पता है कि जो चेंजेस है ना, वो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे, इन एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट द चेंजेस आर टेकन. तो राइट, तो बेसिकली बेटा जो चेंजेस है, बराबर है, वो जनरली दो टाइप्स के चेंजेस हैं, राइट. तो सबसे पहला जो चेंज है, इसके दो टाइप्स है बेटा, कि पहला जो चेंज है वो है फिजिकल, राइट. फर्स्ट चेंज इज द फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज द केमिकल चेंज. तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, सो वी हैव टू, you must have to understand the changes. So physical and the chemical change, these are the two types of the changes. Okay, तो बेटा सबसे पहले हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे. ओके, तो फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, कि फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, बाद में केमिकल चेंज हम स्टडी करेंगे. एक्चुअली फिजिकल चेंज ये जो है, इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना, मतलब इस चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या कर सकते हैं, हम रिगेन कर सकते हैं. मतलब द कंपोजिशन ऑफ द मैटर, इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हम नोट कर सकते. कंपोजिशन ऑफ द मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर
डज नॉट चेंजेस मतलब फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है ना, वह उस ओरिजिनल सब्सटेंस का जो भी कंपोजिशन है, राइट, वो चेंज नहीं होता है, बराबर। ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब कंपोजिशन ऑफ द मैटर डज नॉट चेंजेस। देन सेकंड वन इज इट इज द रिवर्सिबल चेंज, इट इज द रिवर्सिबल चेंज। अब रिवर्सिबल चेंज इसको बोला है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि रिवर्सिबल चेंज मतलब क्या होता है कि वी रिगेन द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो हम क्या कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस चेंज इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल चेंज। अब इस चेंज में जो जनरली ओरिजिनल सब्सटेंस हम रिगेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा चेंज हो गया बेटा, रिवर्सिबल चेंज हो गया। सो दैट्स वाई दिस चेंज इज कॉल्ड एज द टेम्पररी चेंज। ये परमानेंट चेंज हुआ क्या बेटा, नहीं। सो द फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज। ओके, अब टेम्पररी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो एक बार एक सब्सटेंस का कन्वर्शन दूसरे सब्सटेंस में हो गया तो हम वो दूसरे सब्सटेंस से जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या कर सकते हैं बेटा, रिगेन कर सकते हैं। ओके, इसलिए दिस चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। इसमें जनरली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो चेंज होती है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी आर चेंजेस, जैसे कि टेम्परेचर है ना, प्रेशर है, बराबर है कि नहीं, साइज है, राइट, शेप है। ओके, तो ये चीज़ें इसमें क्या होती है बेटा, चेंज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर चेंज इनटू द वाटर का कन्वर्शन आइस में, है ना, ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, वाटर चेंज इनटू द आइस। और स्टीम इज कंडेंस, और स्टीम का कंडेंसेशन होना, कंडेंस। ओके, अब वाटर का कन्वर्शन आइस में होना, बराबर है कि नहीं, तो ये बेटा फिजिकल चेंज है। अब समझो वाटर का कन्वर्शन आइस में हो रहा है तो आइस से हम वाटर रिगेन कर सकते हैं, मतलब दिस इज द रिवर्सिबल चेंज। तो ये वाटर चेंज इनटू द आइस का कन्वर्शन वाटर में फिर से कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम इज कंडेंस, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंज। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज ये टेम्पररी चेंज है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट change. Okay, and the composition of the matters here in this case does not change. Okay, now we have to focus on the chemical change, that the another type of the chemical change. तो बेटा chemical change में क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें कि जो मैटर का composition of the matter is change, है ना, मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, चेंज होता है। मतलब वी कैनॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस, राइट, वी कैनॉट गेट और रिगेन द ओरिजिनल सब्सटेंस, राइट। जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था वो हम रिगेन नहीं कर सकते इस केस में, मैटर का कंपोजिशन चेंज होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, right, and the new substance are totally different. Original substance and new substance are different, right। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है बेटा, तुम्हारा जो पहले जो कंपाउंड आपने लिया था, है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके, है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहती है बेटा, डिफरेंट रहती है, बराबर है। अब इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस हम रिगेन नहीं कर सकते, इसलिए ये जो चेंज हो गया कौन सा हो गया बेटा, परमानेंट। दिस चेंज इज अ परमानेंट चेंज। क्या बोलेंगे हम, परमानेंट चेंज। दिस चेंज इज अ परमानेंट चेंज, बराबर है। क्यों परमानेंट चेंज हुआ ये, वाई दिस इज द परमानेंट चेंज, क्योंकि जो सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनता है ना, ओरिजिनल सब्सटेंस से या ओरिजिनल इससे जो नया सब्सटेंस बनता है उससे हम पहला जो सब्सटेंस है वो रिगेन नहीं कर सकते। जनरली केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है उस कंपाउंड का, बराबर है कि नहीं। तो दिस इज अबाउट द केमिकल चेंज। अब एग्जाम्पल क्या देख लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है केमिकल, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल चेंज इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। फाइनली हमें केमिकल चेंज स्टडी करके केमिकल रिएक्शन पे ही आना है। तो एक्चुअली केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शंस। सो जनरली 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शंस पे क्या किए बेटा, एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन्होंने कुछ उसके जो भी एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, है ना। मतलब उस जनरली स्पेशली 19th और
18th सेंचुरी में experiment different scientists perform the different types of the experiment and they got the conclusion and then classified the different reactions and different types of the reactions. Okay, तो एक्चुअली केमिकल चेंज है ना, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, वो तो हम नेक्स्ट देखने वाले कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो एक्चुअली केमिकल चेंज इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन. एक्चुअली फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं, मिल्क सेट इनटू द कर्ड. जैसे मिल्क आपने देखा है, मिल्क का रूपांतर कर्ड में हो गया, मिल्क का कन्वर्शन जो समझो कर्ड में होता है. कैसे होता है आपको पता है कि मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कर्ड. तो ये जो चेंज है बेटा ये है केमिकल चेंज. क्यों चेंज है? क्योंकि एक बार मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में हो गया तो मिल्क की और कर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, टोटली चेंज. टेस्ट भी चेंज है कि नहीं, मतलब दोनों की टेस्ट चेंज हो जाती है. और कर्ड में से हम मिल्क रिगेन नहीं कर सकते, मतलब दिस चेंज वाज अ परमानेंट चेंज. एक देन अनदर एग्जांपल इज अ राइपनिंग ऑफ फूड, राइट, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट. So these are the different types of the combustion of the coal, right. So these are the different types of the chemical changes are there. So all the physical and chemical changes are takes place in the nature, right. नेचर में डे टू डे लाइफ में डेली रूटीन से ये दोनों भी चेंजेस क्या होते हैं बेटा, मतलब दे ऑकर्स रेगुलरली इन अ रूटीन मैनर. ओके, तो एक्चुअली ये जो केमिकल चेंज है ना, इट इज़ आल्सो दिस केमिकल चेंज को ही हम क्या बोल सकते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन, जो कि हमें स्टडी करना है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड द टाइप्स ऑफ द चेंजेस? ओके, तो बेटा दो टाइप के चेंजेस हमने देखे बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. आपकी किताब में पेज नंबर 30 पे, मतलब इस लेसन का पहला जो पेज है वहाँ पे एक चार्ट दिया है जिसमें कुछ फिनोमिना आपको दिए हैं, और वो फिनोमिना वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है ये आपको पहचानना है ना. मतलब ये कॉलम पे आपको क्या करना है, जो फिजिकल चेंज है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट मार्क करना है. ओके, या केमिकल चेंज है उस पर राइट मार्क. ऑलरेडी अभी हमने एक्चुअली फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है डिटेल्स में स्टडी किया है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिनोमिना एज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो सबसे पहला जो फिनोमिना है बेटा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू द वाटर. तो कौन सा चेंज रहेगा बेटा, ये आइस का कन्वर्शन वाटर में होना. ऑब्वियसली कौन सा चेंज रहेगा? ओके, सो इट इज़ द डेफिनेटली इट इज़ द फिजिकल चेंज. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू द वाटर इज द फिजिकल चेंज. देन नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड, बराबर है. तो ये जब हम फूड कुक करते हैं ना, कुकिंग ऑफ फूड, तो वेदर इट इज़ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ऑब्वियसली ये बेटा कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा. क्योंकि जो फूड बनाते वक्त जो भी रॉ मटेरियल है, जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं ना फूड बनाने के लिए, तो जब फूड कुक होता है तो रॉ मटेरियल की और जो कुक होने के बाद फूड मटेरियल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, बराबर. दैट्स वाई इट इज़ द केमिकल चेंज. और जो हमने कुक किया हुआ फूड है ना, उसमें से हम ओरिजिनल सब्सटेंस रिगेन भी नहीं कर सकते, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द व्हाट, केमिकल चेंज. देन सेकंड वन इज़ द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट. ऑलरेडी हमने एग्जांपल में वो लिया था. डेफिनेटली फूड जब राइपन होता है तो इट इज़ उसमें क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज इज़ देयर. सो राइपनिंग ऑफ द फूड इज़ द केमिकल चेंज. क्योंकि एक बार फूड राइप हो गया तो उसमें से हम जो अनराइपन फूड रिगेन नहीं कर सकते. इट इज़ अ परमानेंट चेंज. ओके, मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, दिस इज़ आल्सो केमिकल चेंज. ये भी हमने डिटेल्स में मैंने अभी बताया था कि मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में होना, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज सम केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन एंड फ्रॉम द कर्ड वी कैन नॉट रिगेन द मिल्क. ओके, मीन्स इट इज़ द परमानेंट चेंज, दैट्स वाई इट इज़ द केमिकल चेंज. देन इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होना, डेफिनेटली इट इज़ द फिजिकल चेंज. क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, बराबर है. एक बार वाटर का इवेपोरेशन हो गया, इवेपोरेशन में क्या वेपर फॉर्म होते, वेपर का अगेन कंडेंसेशन करके वो हम वाटर को क्या कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, मतलब दिस इज़ द फिजिकल चेंज. उसके बाद डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, हम जो फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में. आपने देखा है बायोलॉजी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है. सो मेनी केमिकल्स आर एडेड एंड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स so as to digest the food. So what it mean, it is the chemical change, मतलब digestion of food is also the chemical change.
है ना. Okay, you have to apply the definition what I tell you before that, so as to identify the physical change and chemical change. The in size of the reduction of the naphtha ball exposed to the air. naphtha ball का reduction होना बराबर है. It is a which process it is solid डायरेक्टली गेट कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, है ना. नैप्था बॉल आपने देखा है. एक्चुअली क्या होता है कि उस साइज़ का कन्वर्शन, साइज़ चेंज होती है, मतलब ये बेटा फिजिकल चेंज हो गया. नैप्था बॉल का कन्वर्शन कौन सा चेंज हो गया तुम्हारा, फिजिकल चेंज हो गया, बराबर है. इसमें क्या होता है कि एक्चुअली नैप्था बॉल डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होते हैं, मतलब इट इज़ अ सब्लिमेशन इज देयर, है ना. क्या हो रहा है वहाँ पे, सब्लिमेशन आपने पढ़ा है. देन स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल ऑन अ लेमन जूस. आपने देखा है कि कडप्पा या जो भी टाइल्स आपके घर में है वहाँ पे आप समझो लेमन जूस है, बराबर है. लेमन जूस आपने समझो उस टाइल पे क्या दिया, डाल दिया. क्या होता है वो टाइल्स का जो पोर्शन है वो उतना पोर्शन क्या होता है उसमें कुछ स्पॉट्स वगैरह दिखाई देते हैं. इसका मतलब वो लेमन जूस और क्या बोलते हैं वो शाहबाद टाइल्स या कडप्पा, उसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी. मतलब उसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी बेटा, चेंज होगी. मतलब दिस इज अ केमिकल चेंज. कौन सा चेंज होगा, ये केमिकल चेंज. उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. समझो एक आध ग्लास ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्टन हाइट से क्या हो गया, फॉल हो गया और वो ब्रेक हो गया, बराबर है कि नहीं. ब्रेक हो गया इसका मतलब बराबर है. तो विच टाइप ऑफ चेंज इट इज़, उसमें कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में वगैरह चेंजेस आए क्या, नहीं. तो डेफिनेटली ये भी कौन सा हो गया बेटा तुम्हारा, फिजिकल चेंज. ओके, तो इस तरह से बेटा ये चार्ट आपकी इसमें दिया है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है. तो ये देखो हमने यहाँ पे बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द व्हाट फिजिकल changes. There are basically two types of the changes, physical and the chemical change. Okay, तो आज के पीरियड में हमने ये दो चेंजेस पढ़े. केमिकल चेंज को ही हम chemical change is also called as the chemical reaction. Okay, so in the next period we are going to learn in detail about the chemical reaction. So thank you so much.